समझ लेना है, क्योंकि ये 3 स्टेप हर एक कोड में होंगे एंड यू शुड नो वेरी वेल। और एक बार हम लोग ये लिखेंगे और हर बार कॉपी पेस्ट करेंगे जिससे कि कनेक्शन में बार-बार प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज़ यू शुड नो कि लाइक एक बार ये सारे स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने हैं और सारे कोड के लिए फॉलो करने हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट? ऐड द HTML5 डॉक टाइप। देखिए डॉक टाइप डिक्लेरेशन होता है एक्चुअली दैट डिफाइंस वी आर यूजिंग HTML। होता क्या है, जब आप सर्वर पे पेजेस रखते हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ फाइल्स लाइक HTML फाइल, CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, XML फाइल, JSON फाइल, so image file, audio files, videos files. So there are a lot of files, extension and type of file you can say. So what we need to do if we have given doc type, so if any web server engine reading the code, so easily understand by the first line this is the code of HTML. That's why doc type declaration is required and it's not mandatory actually, like HTML में भी mandatory नहीं होता है, but आप लगा देंगे तो that will be good, क्योंकि जब आप बहुत सारी वैरायटी की फाइल्स से वर्क कर रहे हैं, so how any server can understand this is the HTML code. So this first line, that means doc type declaration. So whenever you are developing any bootstrap file, so you should use this because of the convention. So what is it? So bootstrap uses HTML elements and CSS property that required HTML5 doc type. So be careful, don't say कि ये bootstrap के लिए required होता है, no, ये HTML कोड के लिए required होता है। Like जब कभी भी आप HTML कोड लिख रहे हैं तो doc type लगाइए। तो अगर आप doc type लगाते हैं तो that will be good, नहीं लगाते हैं तो कोई error नहीं होगी, कोई problem नहीं होगी, because you are working in a you are not working in a live server, that's why. So always include HTML5 doc type at the beginning of page along with the lang attribute. What is lang attribute? So lang attribute, it means lang property, defines the language, that means which language we are using. And after that you should specify the correct character set. Character set is what? Like in case of C language, you know there are some character set that we are using like curly braces, comma, dot and all. In the same way, HTML uses the character set that is actually UTF-8. So this character set we should specify with the help of meta tag. So let's see what we need to do. So first of all, we need to do HTML doc type and be careful. It's not mandatory to write like this. आप कैसे भी लिख सकते हैं, small में भी doc type लिख सकते हैं और capital में भी लिख सकते हैं, because HTML is not a case sensitive language. So first thing you should connect with the you should write less than not doc type HTML, and then you need to specify lang attribute in HTML that is specify English. EN stands for English. That means we are using the English format. So HTML lang EN equals to EN. So lang is a attribute of HTML tag. Now within a head tag you need to use meta tag. देखिए मेटा टैग के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम, जिसमें एक काम है कि वो कैरेक्टर सेट बताए। कैरेक्टर सेट का मतलब कि कौन से कैरेक्टर सेट का आप कलेक्शन यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअली दिस शुड बी UTF-8, UTF-8। इसके अलावा अभी कुछ और नहीं लिखना है, दैट शुड बी UTF-8 दैट डिफाइंस द कैरेक्टर सेट। तो हेड में आप लिखेंगे, पहले लिखेंगे मेटा टैग दैट डिफाइंस द कैरेक्टर सेट, पर इसी मेटा टैग को अभी हम लोग और भी एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि में और भी काम करने होते हैं। तो दैट मीन्स यू शुड गो फॉर दीज थिंग्स, लाइक आपके कोड में इतनी चीजें लिखी होनी चाहिए। तो लेट मी शो यू कि मैं पैरेलली आपको कोड लिख करके भी बताता हूँ। देखिए पैरेलली मैं जो लिख रहा हूँ आप भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ कि यही सेम चीज आप लोगों को हर बार यूज करना होगा। तो दैट इज व्हाट आप लिख सकते हैं, नॉट देन आफ्टर डॉक टाइप देन आफ्टर HTML। आई टोल्ड यू कि इसका कोई केस नहीं होता है, like capital or small, किसी में भी लिख सकते हैं। So I have given. Now after that you should use HTML tag with the lang attribute. अब देखिए ये सब मैंडेटरी नहीं होता है, but you should follow these things, so that will be good for you. उसके बाद देखिए head tag use कर रहे हैं, and within a head tag I told you meta char set equals to UTF-8 that we are defining. 9 लिख दिया सर। Sorry सर 9 लिखा होगा। 9 लिख दिया सर।
क्या लिख दिया है? UTF-8 होगा सर। UTF-9 ओके ओके ओके, मुझे लाइन समझ में आया, LINE। ओके ओके फाइन, इट्स फाइन। एंड लेट्स सी सर डॉग आफ्टर टाइप में नेगेशन देना कंपलसरी है क्या? क्या कह रहे हैं? डॉग टाइप में नेगेशन देना कंपलसरी है क्या? हाँ, बिकॉज यही उसका सिंटैक्स होता है, लाइक लिखने का तरीका यही होता है। और नाउ वी आर राइटिंग हियर बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैड डन। सो केवल हम लोगों ने दो चीजें इंक्लूड की यहाँ पर, दैट इज डॉग टाइप एंड मेटा कैर सेट UTF-8। सो वी हैव क्रिएटेड द फर्स्ट स्टेप। नाउ वी आर मूविंग फॉर सेकंड स्टेप। सो व्हाट इज सेकंड स्टेप? लेट्स सी। आप लोग भी इतना राइट कर लीजिएगा, आप लोग भी इतना राइट कर लीजिए प्लीज। So let's understand, मैं भी आपको टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। आइए थोड़ा और आगे देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये बहुत जरूरी है लिखना, बिकॉज इसके बिना आप बूटस्ट्रैप यूज नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाट बूटस्ट्रैप 3 इज अ मोबाइल फर्स्ट। दैट इज व्हाट बूटस्ट्रैप 3 इज डिजाइंड टू बी रिस्पॉन्सिव टू द मोबाइल डिवाइसेस। क्यों बनाया गया? मोबाइल डिवाइसेस के लिए, लाइक वहाँ रिस्पॉन्सिव हो वेब पेज। एंड मोबाइल फर्स्ट स्टाइल आर द पार्ट ऑफ कोर फ्रेमवर्क। यही तो इस फ्रेमवर्क का बेनिफिट हुआ, यही तो इसका एडवांटेज हुआ। एंड टू इंश्योर प्रॉपर रेंडरिंग एंड टच जूमिंग, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी केयरफुल क्लास, व्हाट आई एम सेइंग, टू इंश्योर प्रॉपर रेंडरिंग एंड टच जूमिंग एट द फॉलोइंग मेटा टैग विद इन अ हेड टैग। तो क्या करना है? तो हम लोगों को प्रॉपर रेंडरिंग के लिए और टच जूमिंग के लिए इस पर्टिकुलर टैग को लिख रहा है। तो अगेन मेटा टैग, देखिए अगेन मेटा टैग नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट। So what do you mean by viewport? Viewport is a area where all the content will be visible. जो भी आप कंटेंट देखते हैं वो सब viewport पे आता है। मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर आपका पूरा रिजल्टेंट डेटा आता है, लाइक वेब पेज आप कह सकते हैं। So meta name equals to viewport and be careful, content equals to डबल कोट्स में दोनों चीजें हैं, width and initial hyphen scale. So width equal to device dash width and initial scale will be 1. So what do you mean by width? तो देखिए width प्रॉपर्टी है that defines device dash width, यानी जो भी डिवाइस की width होगी, हमें अनिकेत और अंकित राज, who is this? Class, be careful, your mic should be muted. So class, please be sure your mic should be muted. And let's see. So what I'm, yes. सर ये मेटा क्लियर नहीं हो रहा है। बता ही तो रहा हूँ, अरे अभी कंप्लीट नहीं किया मैंने। Okay sir. So we are just discussing about meta tag. So what I am saying, viewport दिया, like that's a area where all the pages or content will be appeared. And content equal to what we are giving width equals to device width. That means what? width एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग बता रहे हैं कि सेट हो जानी चाहिए डिवाइस के width के अकॉर्डिंग। यानी ये जो व्यू पोर्ट बना रहे हैं, यानी व्यू पोर्ट का मतलब वो एरिया जहाँ पे कंटेंट आएगा, उसकी width डिवाइस के width के इक्वल होनी चाहिए। तो दैट वी आर असाइनिंग कि डिवाइस डैश width की साइज हो जाए width में, और फिर कॉमा लगा के दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इनिशियल डैश स्केल। देखिए ये जूमिंग फैक्टर बताता है। जूमिंग फैक्टर इट मींस व्हाट, कि जब आपका पहली बार पेज लोड होगा तो उसका इनिशियल जूम फैक्टर क्या होगा। लाइक आप जब मोबाइल में 2 फिंगर से जूम करते हैं तो वो बहुत, कोई साइड आप देखोगे बहुत जल्दी जूम हो जाती है और कोई बहुत थोड़ा जूम होती है। तो दैट इज व्हाट इनिशियल डैश स्केल। जो आप बताएंगे, जितना ज्यादा बताएंगे उतना जूमिंग फैक्टर ज्यादा होगा, और जितना कम बताएंगे उतना कम होगा। लाइक 1 we can give and that's actually standard way. So meta tag is used to define some meta information. Meta information मतलब कुछ related information होते हैं जिसको define करने के लिए यूज करते हैं, यानी उसका कोई outcome नहीं होता है, यानी पेज पे उसका कोई appearance नहीं होता है, but that defines the meta information. Just like in a last slide, in a first stage, I have given meta char set equals to UTF-8. That means we are using character set UTF-8. Similarly, here we are using meta tag and defining the viewport. Like viewport को बता रहे हैं उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए, तो उसकी width होनी चाहिए डिवाइस डैश width में और इनिशियल स्केल होना चाहिए 1.
that here clearly defines like width equals to device dash width is the part sets the width of page to follow the screen width. तो स्क्रीन विड्थ को फॉलो करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, width equal to device dash width, which will be vary depending on devices. Like if you are opening it on a mobile, that means different width. If you are opening into the tablet or a desktop, that means different width. So that width can be evaluated with this value like device dash width and can assign into the width property. And similarly, in a meta tag, we are defining initial dash scale. What? 1. 1 it means what? Zooming factor. So its part set the initial zoom level when the page is first loaded onto the or by the browser. यानी उसका जूमिंग फैक्टर कितना होगा, लाइक आप अगर 2 फिंगर से उसको जूम कर रहे हैं तो वो कैसा होगा. इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. सो लेट्स सी कि मैं इस कोड में थोड़ा सा अपेंड करने जा रहा हूँ, और क्या अपेंड करूंगा, तो द सेम थिंग्स जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया. तो लेट्स सी, यहाँ मैं लगा रहा हूँ मेटा टैग, मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट, देन आफ्टर कंटेंट इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा डबल कोट्स में दोनों था, विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस डैश विड्थ and then comma initial scale INITIL dash scale equals to 1 like this. So this is the meta information. यानी 2 meta information हम लोगों ने लिख दिया, एक दिखा कैरेक्टर सेट के लिए और दूसरा लिखा और क्या होल डिवाइस, लाइक डिवाइस की विड्थ क्या होगी, यानी पहले तो कौन सा एरिया हम लोग बना रहे हैं, तो व्यू पोर्ट बना रहे हैं, इस व्यू पोर्ट का क्या विड्थ होगा, तो वो होगा जो डिवाइस का विड्थ होगा, और इनिशियल स्केल उसका यानी जूमिंग फैक्टर क्या होगा, वो 1 होगा. इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. अब ये तो देखिए, ये कोड तो आपको हर जगह लिखना है, और इसके साथ साथ एक चीज और लिखना है, दैट इज व्हाट, जो हम लोगों ने अभी बात की थी, मैंने आपको कहा कि हम लोगों ने पूरा ये पूरा CDN पढ़ा, ये CDN. तो इस CDN में मैंने आपसे कहा था कि jQuery लाइब्रेरी का और ये min.js की तब जरूरत पड़ेगी जब हम इवेंट करेंगे, यानी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज डिजाइन करने जा रहे हैं, तो डिजाइन के लिए इसका होना मैंडेटरी है. तो देखिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ ला करके पेस्ट कर लिया. दैट मीन्स वी हैव कनेक्टेड विद द बूटस्ट्रैप min.css फाइल, और ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें फाइल भी नहीं देखना है कि फाइल कहाँ स्टोर है नहीं स्टोर है, तो दैट इज द थिंग. सो व्हाट वी नीड टू डू, इतना तो देखिए हर जगह करना है, ये वर्क हर जगह करना है. तो इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. अब देखिए इस फाइल को, यस सर, जैसे हमको डिजाइनिंग के साथ साथ कुछ एक्शन भी परफॉर्म करना रहेगा तो दोनों लिंक टेस्ट करना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल, दोनों लिंक लगाना होगा, क्योंकि जब तक JS फाइल से आप कनेक्ट नहीं होंगे तब तक तो ये कर ही नहीं सकते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, हेलो सर. सर एक Yes, और sir. प्रॉब्लम. हाँ बताइए. सर जैसे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट मतलब एक बार हेड में लगा देंगे और एक बार बॉडी में, ऐसा हो सकता है? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं. आप ये कह रहे हैं ना कि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को हेड में भी लिखें और बॉडी में भी लिखें? यस सर. बिल्कुल कर सकते हैं. आप देखिए jQuery के केस में आप हमेशा 2 स्क्रिप्ट लगाते थे, एक एक्सटर्नल से कनेक्ट करने के लिए और एक खुद का jQuery कोड लिखते थे. और सर जैसे हेड में जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे उसकी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं बॉडी वाले स्क्रिप्ट में? लोकल वेरिएबल अगर फंक्शन के अंदर है तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन की बॉडी में लिखा हुआ वेरिएबल कभी भी आउटसाइड ऑफ स्कोप एक्सेस नहीं होता. दैट्स व्हाई यू शुड रिटर्न द वैल्यू. ये तो सी का कंसेप्ट है. सी में फंक्शन के अंदर लिखा हुआ वेरिएबल कभी भी बाहर आप नहीं यूज कर सकते हैं जब तक उसकी वैल्यू को रिटर्न नहीं करा देते. सर तब उसको ग्लोबल बनाने के लिए कहाँ लिखना पड़ेगा? फंक्शन की बॉडी के बाहर लिखिए. ओके. So class, so I guess कि you all have done till now. अब देखिए इसके बाद अभी आपका स्लाइड पे थर्ड स्टेप बचा है. थर्ड स्टेप इज व्हाट, लाइक वो भी हर जगह जरूरत होगा और वो भी समझना बहुत जरूरी है एंड वेरी इजीली एक्चुअली. देखिए एक होता है कंटेनर. कंटेनर 2 तरह के होते हैं एक्चुअली. कंटेनर का मतलब एक समझिएगा, कंटेनर का मतलब वो एरिया है जहां आप लोग सारा कोड लिखेंगे.
तो बूटस्ट्रैप कहता है कि एक मेन कंटेनर होना जरूरी है। जैसे आप लोग बॉडी को मेन कंटेनर की तरह यूज करते थे और सारा कोड उसके अंदर लिखते थे, पर अब बॉडी के अंदर भी एक कंटेनर होना जरूरी है जो जिसमें सारे कोड लिखेंगे। और बूटस्ट्रैप में ये कंटेनर दो तरह के होते हैं, एक कंटेनर नाम की क्लास होती है और एक होती है कंटेनर डैश फ्लूइड। ध्यान दीजिएगा, कंटेनर एंड कंटेनर डैश फ्लूइड। तो हर एक एलिमेंट जो आप चाहते हैं कि आपके वेब पेज का पार्ट हो, वो या तो कंटेनर क्लास के अंदर होना चाहिए या तो कंटेनर फ्लूइड क्लास के अंदर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्लास कंटेनर क्लास जो होती है वो फिक्स्ड विड्थ होती है। फिक्स्ड विड्थ का मतलब होता है पूरे विंडो में नहीं आएगी, यानी पूरे पेज पे नहीं आएगी। और कंटेनर डैश फ्लूइड जो होता है वो फुल विड्थ होता है, यानी वो पूरे पेज पर आएगा। तो इससे क्या है, इसका क्या यूज कर सकते हैं ये हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर एक पॉइंट बहुत याद रखना है कि किसी भी कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर नहीं होगा। जैसे आपने देखिए ये सारी क्लासेस हैं, जैसे हम लोग सीएसएस में क्लासेस यूज करते थे, तो ये बनी बनाई क्लासेस हैं। तो अगर आपने इस क्लास को किसी सेक्शन पे अप्लाई कर दिया और सोचा कि उसी सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन बना लें और एक और कंटेनर यूज कर लें, तो नहीं कर सकते हैं। कंटेनर के अंदर कभी भी दूसरा कंटेनर नहीं यूज होगा। लाइक कंटेनर क्लास से अगर कोई कंटेनर आपने बना दिया तो उसके अंदर जा करके कोई और कंटेनर क्लास या कंटेनर डैश फ्लूइड क्लास यूज नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स नेस्टिंग नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक पेज पे हम कंटेनर क्लास और कंटेनर डैश फ्लूइड दोनों नहीं लगा सकते हैं। आप दोनों लगा सकते हैं, बट द पॉइंट इज व्हाट कि एक के अंदर एक नहीं लगेगा। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये देखिए, मैं अभी आपको एक डीआईवी बना के बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ डीआईवी बनाया और सेक्शन 1 लिख लिया और डीआईवी क्लोज कर दिया। और अब देखिए एक डीआईवी और बनाएंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और ये पेस्ट कर दिया। ये 2 डीआईवीज बना दी हमने और इस फाइल को मैं पहले ही सेव कर चुका हूँ। इसका नाम रख देता हूँ div2। मैं आइए इस फाइल को पहले रन करा दूं जिससे कि आप इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करते हुए कोड को करें। तो ये थी 11.html और ये देखिए 11.html पे ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आ गया। तो इसमें देखिए समझना क्या है, पहले तो मैं इसमें स्टाइल कर दे रहा हूँ इसलिए क्या आप ये समझ पाए कि ये एरिया कितना कवर कर रहा है। एंड आई गेस कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि div तो ब्लॉक लेवल टैग होता है, तो ये पूरा एरिया कवर कर रहा होगा पेज में। इज इट और नॉट क्लास? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए ये div का जो हमने फॉर्मेट लगाया है, यही फॉर्मेट इसका भी लगा देते हैं, बस इसको चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा। और ध्यान दीजिएगा क्लास, ये फॉर्मेटिंग मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ कि आप ये समझ पाए कि div कितने सेक्शन में बन रहा है या कितने एरिया में बन रहा है। ये देखिए, ये हमारे पेज को हम लोगों ने डिजाइन कर लिया। और अगर मैं इस पेज पर जाऊं, इस पेज को मैं थोड़ा सा 100% पे करके दिखाऊं आपको, ये है 100%। तो देखिए ये फुल विड्थ में है, क्यों? क्योंकि उसमें बूटस्ट्रैप लिंक तो किया गया है बट यूज नहीं किया गया है। यूज कैसे करेंगे? तो देखिए मैं यहाँ पर पहली क्लास लगाने जा रहा हूँ कंटेनर क्लास, और यू नो कि अगर बनी हुई क्लास है उसको यूज करना है तो क्लास के अंदर ही क्लास का नाम लिखा जाता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंटेनर, ये कंटेनर बना दिया। और एक और लिख देते हैं दूसरा वाला भी क्लास, कंटेनर डैश फ्लूइड। मुझे बताइए कौन सा फुल विड्थ होता है? Container dash fluid. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये देखिए लगा दिया। तो ये इसलिए लगाया कि आप इसको प्रॉपर समझ पाएं। आइए स्क्रीन को रिफ्रेश करिए, लेट्स सी। अब देखिए इसको अगर मैं आपको जूम करके भी दिखाऊं तो ये देखिए साइड साइड में इसके स्पेस है, यानी फिक्स्ड विड्थ वाले में जो सेक्शन 1 है दैट इज फिक्स्ड विड्थ। फिक्स्ड विड्थ का मतलब कंटेनर, तो फिक्स्ड विड्थ है इसीलिए देखिए इसके साइड साइड में स्पेस है। लेकिन जो ये फुल विड्थ है कंटेनर डैश फ्लूइड, ये देखिए पूरे विंडो में आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes, sir. वेरी गुड। अब एक बात सुनिएगा इस कोड को रन कराने से पहले, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूँ ये कोड रन करने के लिए, लेकिन इससे पहले समझिएगा अगर हम कंटेनर डैश फ्लूइड लगाएं तो उसका तो कोई मतलब नहीं हो, तो फुल विड्थ हो ही रहा है और नॉर्मल div भी होती है। पर ये जो कंटेनर लगा रहे हैं और ये फिक्स विड्थ में ऐसा मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि बूटस्ट्रैप कनेक्टेड है। अगर बूटस्ट्रैप वाली फाइल नहीं होती, मतलब ये bootstrap.min.css नहीं होती, तो ये क्लास हमको मिलती नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी CSS में कोई क्लास बनी हो तो यूज करने का तरीका तो यही होता है, क्लास इक्वल टू क्लास नेम। तो ये जो bootstrap.min.css फाइल है, इसी के अंदर ये क्लास है कंटेनर, और उसी क्लास को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर आपने इस कोड को लिखा और आपको ये सेक्शन 1 पूरे विंडो में मिल रहा है, इसका मतलब कि आपका बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं हो रहा है। इट मींस यू शुड चेक दिस लिंक। तो अगर मिल जा रहा है तो दैट मींस कि आपका बूटस्ट्रैप अप्लाइड हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास?
Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो इतना करके देखिए, तब मैं आपको और आगे की चीजें बताऊंगा। सो प्लीज डू इट फास्ट, इसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा, ज्यादा जल्दी करिएगा, और जो लिंक है उसको कॉपी पेस्ट करिएगा, बिकॉज आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। सो डू इट फास्ट क्लास। इफ यू हैव डन, सो प्लीज पुट योर रेज हैंड। को मेटा टैग लगा करके ये बता देना है कि व्यू पोर्ट का नाम, दैट मीन्स नेम विल बी व्यू पोर्ट, और उसके विड्थ क्या होगा, उसका इनिशियल जूम फैक्टर क्या होगा। एंड आफ्टर दैट यू शुड कनेक्ट विद द बूटस्ट्रैप, एंड देन यू कैन यूज कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड क्लास। सो क्लास, आई वांट टू टेल यू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। बूटस्ट्रैप में अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सीखने, मतलब आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो सीखने वाला है, इसके बाद कुछ भी सीखने वाला नहीं है, वो सब अप्लाई करने वाला है। जैसे देखिए, कंटेनर लगाना और कंटेनर फ्लूइड लगाना, ये सीखना नहीं था, ये लगाना था, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर कोई बनी बनाई क्लास है तो उसको कैसे लगाते हैं। तो क्लास इक्वल्स टू क्लास नेम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम जो बताने जा रहे हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसी को सिर्फ समझना होता है, एंड यू शुड कॉन्सेंट्रेट हियर, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से आप समझ में आ जाएगा, बट यू शुड फोकस कि लाइक यही तो समझना है बूटस्ट्रैप में। सो क्लास, वी आर मूविंग अहेड, सो प्लीज पुट लोअर हैंड, वी आर जस्ट मूविंग फॉर some more point, so please put the lower hand. So class, please put the lower hand. Kajol, Sonu, Megha, please listen in a one instruction. Kajal, not Kajol. Kajal. Okay, fine. So let's see class what we had done. We have created two things, container and container fluid. अब देखिए, किसी भी एक को यूज करिए, मैं एक को हटा दे रहा हूँ, देखिए एक को हटा दे रहा हूँ। अब मैं इसमें जो बताने जा रहा हूँ यही आपको समझना है, दैट इज व्हाट, कि मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ कि कैसे सेक्शंस क्रिएट किए जाते हैं। ये तो आपने कंटेनर बनाया था, जो कि मेन कंटेनर था, कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड, ये मेन कंटेनर था। इस कंटेनर के अंदर आपको बहुत सारे डिवीजन क्रिएट करना सीखना है। तो डिवीजन क्रिएट करना सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आप लोगों से 4 क्लासेस डिस्कस की थी। वो 4 क्लासेस थी आपके पास, एक्सेस, एसएम, एमडी और एलजी। तो देखिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर एक स्क्रीन के लिए आप अलग अलग कोड लिखेंगे, यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप इनिशियली कोई भी क्लास यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक्सेस करिए, जरूरी नहीं है कि आप एमडी करिए, जरूरी नहीं है कि आप एलजी करिए। दैट मीन्स यू कैन एक्सेस एनीथिंग, यू कैन यूज एनीथिंग, एनीवन। तो कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। तो अब अगर आप यूज करने जा रहे हैं तो क्या करना होगा, तो आपको क्या करना है कि किसी भी एक को भी रैंडमली सेलेक्ट कर लेना है, और उस पर हम लोग जा रहे हैं डिवीजन क्रिएट करने। लेकिन फिर भी अगर ये क्लासेस हैं तो इन क्लासेस का कुछ तो यूज होगा, सो दैट आई विल टेल यू लेटर। लेकिन अब देखिए, मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ आपको सेक्शन क्रिएट करने कि लाइक सेक्शन कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर आपको किसी पेज को डिवाइड करना है तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक रो बनानी होगी, और रो बनाने के लिए एक क्लास होती है जिसका नाम होता है रो। जैसे ही आप करेंगे एक रो बन जाएगा। अब रो बनने का मतलब क्लास ये नहीं होता है कि लाइनें क्रिएट हो जाएंगी, लाइन नहीं क्रिएट हो गई, एक रो बना दिया हमने। मान लीजिए हमको 2 सेक्शन बनाना है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है या 2 हॉरिजॉन्टल सेक्शन बनाना है, तो हम 2 बार रो ओपन कर लेंगे, एंड दैट विल बी द पार्ट ऑफ कंटेनर क्लास। हमेशा कंटेनर के अंदर ही सारा काम करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी आप कोई रो ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 12 ग्रिड बनती हैं। 12 ग्रिड का मतलब होता है 12 सेक्शन। जैसे आप रो कॉलम बनाते हैं तो 12 कॉलम कह सकते हैं आप, कि 12 कॉलम या 12 ग्रिड बाय डिफॉल्ट बनती हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्लास कि बाय डिफॉल्ट 12 ग्रिड बनती हैं। आई वांट टू शो यू एमएस पेंट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा व्हाट आई एम सेइंग। मैंने कहा कि अगर आपने किसी भी पेज में एक ऐसा सेक्शन बना लिया तो बाय डिफॉल्ट इसमें कितने सेक्शन होंगे क्लास? 12। वेरी गुड। और मैं अगर आपसे कह दूं कि इस 12 सेक्शन को मुझे 3 इक्वल साइज में डिवाइड करना है, इस 12 सेक्शन को
3 इक्वल साइज में डिवाइड करना है, तो एक सेक्शन की साइज क्या होगी क्लास? 4. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यानी एक की 4 होगी, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यही क्रिएट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट 12 होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट 12 में मैं चाहता हूँ 3 सेक्शन क्रिएट करूँ। तो देखिए इस समय हम लोगों ने DIV रो लिया था और हम जानते हैं इसमें 12 सेक्शन है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 12 होते हैं। तो अब अगर मुझे 4 के 3 सेक्शन बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्लास इक्वल्स टू। अब देखिए एक क्लास होती है कॉल डैश, अब देखिए यहाँ MD हम लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर MD की जगह एक्सेस भी लिख सकते हैं, SM भी लिख सकते हैं और LG भी लिख सकते हैं, बट अभी कोई एक ही लेकर के हम लोग चलेंगे। ये डिफरेंट क्लासेस का क्या मतलब है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। और ये देखिए यहाँ लिख दिया 4, यानी क्या क्लास लगाया कि कॉल डैश MD डैश 4, यानी 4 साइज का एक सेक्शन बना दो। तो ये देखिए इसका नाम ही मैं लिख देता हूँ सेक्शन 1 और ये डिव को क्लोज कर दिया। देखिए सेव करते हैं और आपको पेज पे रिफ्रेश करके दिखाते हैं। लेट्स सी, ये देखिए वो सेक्शन 1 बन गया। तो आपको लग रहा होगा ये तो पहले की तरह है, नहीं ये पहले की तरह नहीं है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन अ मोर बेटर वे, तो ये देखिए ये बैकग्राउंड कलर जो यहाँ पे लगा है, ये ध्यान रखिएगा ये कंटेनर पे लगा था, कंटेनर में हटा दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कंटेनर पे नहीं लगेगा, तो इसको कट कर दिया और लगा दिया इस पर। इसलिए ये सिर्फ बैकग्राउंड इसलिए लगा रहे हैं कि आप ये समझ पाएं कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है। तो लेट्स सी, ये देखिए 1/3 एरिया कवर्ड किया है कंटेनर में। चूंकि कंटेनर लगा है तो ये फिक्स्ड ब्रेथ है, और फिक्स्ड ब्रेथ में देखिए 1/3 एरिया इसने कवर कर लिया। अब अगर आपको डाउट हो तो देखिए ऐसे ही 4 के 3 रो बनाने, 3 सेक्शन बनाने थे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 12 होते हैं, तो देखिए हमने 4 के 3 बना लिए। जैसे ही आपने यहाँ पे 4 का एक, 4 का दूसरा, 4 का तीसरा बनाया, तो ये क्या करेगा, ये देखिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ सेक्शन 2, इसका नाम रख रहा हूँ सेक्शन 3, और देखिए कलर भी चेंज कर दे रहे हैं जिससे आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाए। ये देखिए, तो हमने 4 के अगर 3 बनाए हैं तो ये एक रो में 4 इक्वल जो है सेक्शन क्रिएट कर देगा, सॉरी 3 इक्वल सेक्शन, क्योंकि 4 के हम लोगों ने 3 सेक्शन क्रिएट किए हैं। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. वेरी गुड। अभी ये मत पूछिएगा कि सर 4 से अधिक कर दे तो, डोंट वरी, एक स्टेप समझिए जैसे मैं समझा रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको कि आप ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा। तो ये तो देखिए एक रो बना लिया। अब मुझे बताइए कि अगर मैं चाहता हूँ कि एक रो और बनाऊं, तो फिर से देखिए लिखूंगा क्लास इक्वल्स टू और यहाँ लिख देंगे रो। और मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि, और ये देखिएगा ये गलती आप लोगों से हर बार होगी कि आपने DIV ओपन किया और उसको क्लोज नहीं किया, तो बाद में आप काउंट करते रहेंगे, ये वाला बंद है, वाला खुला है, वाला बंद है, ये वाला क्लोज है। तो कोशिश ये करिए कि जैसे ही रो ओपन किया, जैसे ही DIV ओपन किया, उसको तुरंत क्लोज कर लीजिए, तो आपको डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब मेरे पास एक क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट रो में 3 सेक्शन बनाए थे इक्वल साइज के। अब मुझे बताइए मैं नेक्स्ट रो में 4 सेक्शन बनाना चाहता हूँ इक्वल साइज का, तो एक सेक्शन किस साइज का बनेगा? 3. वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए फिर से मैंने लिखा DIV क्लास इक्वल्स टू कॉल डैश MD डैश 3। अब फिर मत कहिएगा कि सर MD क्यों यूज कर रहा है, एक्सेस क्यों नहीं कर रहे हैं, SM क्यों नहीं कर रहे हैं, LG क्यों नहीं कर रहे हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी एक ही करिए। MD, LG, SS और एक्सेस का क्या काम है वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये देखिए 3 का हमने 4 बना लिया। अब 4 बना लिया तो 3 का 4 सेक्शन बन गया, तो 3 कर देंगे तो ये 4 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी ये टोटल 12 हो जाएगा। तो हमने 12 सेक्शन बना लिए, सॉरी 12 के इक्विवेलेंट सेक्शन बना लिए 3 के पार्ट से। तो देखिए इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं, देखिए ये भी 4 बन गए। अब यहाँ भी आपको डाउट हो सकता है कि ये चारों इक्वल है या नहीं, तो तरीका आप जानते हैं, हम लोग लगा लें बैकग्राउंड। देखिए बैकग्राउंड सिर्फ इसलिए ही लगा रहे हैं कि हम लोग ये देख पाएं कि हमारा सेक्शन जो है वो सच में इक्वल साइज का बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ इसको, और यही स्टाइलिंग इन सब सेक्शन पे भी लगा के देखूंगा कि क्या ये सच में उसी साइज का आ रहा है या नहीं। तो देखिए अभी तो मैं सबका कलर सेम कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं चेंजेस मेड करूंगा इसमें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे बैकग्राउंड ले लिए और सबका कलर भी हमको कुछ डिफरेंट चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर दे रहा हूँ। यहाँ दे दिया, यहाँ कह दिया EE, और यहाँ कह दिया DC। लेट्स सी, देखिए क्या क्लास चारों के इक्वल साइज आ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड। तो देखिए मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं कि हम लोगों ने क्या किया। कंटेनर क्लास लगाया था, कंटेनर क्लास का div बंद किया था। उसके अंदर एक रो बनाया जिसको इक्वल साइज में डिवाइड करना था, 3 इक्वल साइज में, इसलिए 4 में डिवाइड किया। दूसरे रो को 4 इक्वल साइज में डिवाइड करना था, इसलिए 3 में डिवाइड कर लिया। सो होप सो कि किसी को डाउट नहीं होगा। आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि पहले पहला रो बना करके देखिए कि क्या आप भी इक्वल साइज के 3 से आ रहे हैं या नहीं। सिर्फ फर्स्ट रो आपको बनाना है, बना के देखिए तब आगे चलते हैं। तो रेज हैंड करिएगा क्लास, और इसका स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप देखिए मैं हर बार आपको इतना ही कोड हमेशा दूंगा क्योंकि इसके ऊपर का आप जानते हैं कॉमन टू ऑल है। So do the same, and if you have done so, please raise your hand. हेलो बताइए। हेलो सर, ऊपर वाला कोड सेम ही रहेगा, ऊपर में जो लिखे थे। बिल्कुल मैंने यही कहा है, और प्लीज हर्ष कोशिश ये करिए कि जब मैं आपको काम असाइन कर दूं तो काम करिए, उससे पहले पूछिए, ठीक है। यस सर। सेम होगा कोड, डू द सेम। आप लोग ये बार बार इस पे चैट बॉक्स पे मैसेज मत ड्रॉप करें। मैं बार बार मैं देख रहा हूँ, अभी लास्ट टाइम आकांक्षा ने आई गेस ड्रॉप किया था। यस, आकांक्षा ने ही किया था, और फिर अभी उसके बाद फिर से एक मैसेज आ गया, लाइक एक लोग और मैसेज भेज रहे हैं। तो डोंट पुट अननेसेसरी मैसेज। मैं एक बार भेज चुका हूँ, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ये सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं सारे यूआरएल, और यूआरएल ऑनलाइन ही कॉपी किए जाते हैं। प्रियतम कुमार, हमने सेंड किया था तब आपने नहीं लिया था। बी केयरफुल फॉर दीज थिंग्स। इसका मतलब है आप फर्स्ट कोड एग्जीक्यूट नहीं किए हैं, और फिर अब 3-4 कोड के बाद आप पूछेंगे कि सर हमारा रन नहीं कर रहा है। क्लास प्लीज गो वन बाय वन, बेनिफिट आपका होगा, आप सीखेंगे। और मैं पहले दिन ही सारी चीजें करा सकता हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं आपको कोई पॉइंट दे रहा हूँ करने के लिए, तो दैट मीन्स जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, दैट विल बी गुड फॉर यू।
क्लास कोई मुझे बता सकता है मैक्सिमम कितने सेक्शन की बात किया हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट? 12. 12। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कभी ऐसी भी रिक्वायरमेंट आ सकती है कि 12 से 24 करना पड़ जाए, तो वो भी होता है। दैट्स ऑल आर द वे वी हैव, तो वो हम लोग करेंगे। क्लास प्लीज पुट द लोअर हैंड। सोनू, काजल, ललित, प्रियांशु, व्हाट यू ऑल आर डूइंग? मैं बार-बार कहता हूँ कि मैं जितनी देर आपसे कहता हूँ लोअर हैंड करने के लिए, उतनी देर मैं आपको टाइम देता हूँ। वहाँ तुरंत टाइप नहीं करने लगेंगे, और करने भी लगेंगे तो इतना तेज टाइप नहीं कर देंगे कि 2-3 पेज लिख देंगे और आप देख नहीं पाएंगे। So keep your time secure. If I have given the instructions, so you should follow and listen carefully, क्योंकि आप हेडफोन और ईयरफोन के साथ होंगे तो आप तो सुन तो रहे ही होंगे। तो मैं तब तक केवल वेट कर रहा होता हूँ और इनपुट देता हूँ कि जब तक आप लोअर हैंड करेंगे तब तक कुछ नई बातें भी कर लेंगे, और तब हम लोग कोड लिखेंगे। तो आप लोग वेट करने लगते हैं, कहीं सर कुछ लिख ना दें और इतना तेज ना लिख दें 1-2 पेज हो जाएगा। सो क्लास प्लीज बी केयरफुल, आप लोग इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। अब तक तो आपको समझ आना चाहिए कि लाइक हाउ वी नीड टू वर्क। ओके, सो हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। मैं बात ये कर रहा था कि अभी 12 बाय डिफॉल्ट ग्रिड होती हैं, बट इस 12 ग्रिड के बाद भी अगर हमें ज़रूरत पड़े लाइक 24 ग्रिड्स की, तो हम लोग कर सकते हैं। 24 या फिर उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। बट हाउ, दीज थिंग्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन। नाउ सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव, और सेव किया, और ये देखिए सेक्शन आपके पास 4 सेक्शन है, और 3-3 के ये 4 सेक्शन है दैट वी हैव क्रिएटेड हियर। नाउ इफ you two, let's see, I am removing first and second. So any two if you moving, no section will get, यानी इस समय हमारे पास 3-3 के 2 सेक्शन हैं, और बाकी जो आपके 6 के साइज का जो एरिया है वो हम लोगों ने खाली छोड़ दिया है। सो नो प्रॉब्लम, अगर आपने खाली भी छोड़ दिया तो उससे भी कोई इशू नहीं है। तो देखिए एक रो है, इसमें 3-3 के 2 सेक्शन बने हुए हैं, और अगर आप ऐसे ही एक और डिव ले लेते हैं और इस डिव में भी एक क्लास लगा के रो लगा दे रहे हैं, और इस रो में डिव को क्लोज किया, और इस रो में फिर से आपने ये 2 पेस्ट कर दिया और 2 और पेस्ट कर दिया, यानी 4 बना लिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी, ये देखिए, तो नीचे वाले में 4 बना हुआ है, ऊपर वाले में 2 ही सेक्शन बना है, क्योंकि जो फर्स्ट रो है उस फर्स्ट रो में हम लोगों ने 3-3 साइज सिर्फ 2 सेक्शन ही दिए हैं। दैट नेम इज सेक्शन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 हम लोग लिख रहे हैं, तो देख रहे होंगे आप 3 और 4 यहाँ विजिबल हो रहा है, बाकी 1 2 3 4 ऐसा करके लाइक 4 सेक्शन यहाँ क्रिएट कर लिया। सो द पॉइंट इज व्हाट, कि एक रो में जरूरी नहीं है कि हम पूरे 12 ग्रिड फिल करें। जरूरत पड़ने पे हमें लगता है कि 3-3 के 2 ही सेक्शन चाहिए, तो हमने 2 ही सेक्शन बना लिया। इवन मुझे लगता है कि मुझे इसको 3:1 में डिवाइड करना है फर्स्ट रो को, तो ये देखिए 3:1 में कर दिया। 3:1 का मतलब पहले वाले को 9 कर दिया, दूसरे वाले को 3 कर दिया। लेट्स सी, 9 और 3 का बन गया। एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, sir. वेरी गुड, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब आगे चलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 9 और 3 का बना लिया है। अगर आप ये 9 हटा देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आप प्रॉब्लम समझिएगा कि अगर मैं कहूँ कि ये 9 और 3 है, तो दैट्स गुड हो गया। अगर इस साल के बाद, या एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर अब 2-2 के बनाते हैं। देखिए 2 और 2 के ये 2 सेक्शन बना लिए, तो यह देखिए 2-2 के 2 सेक्शन हो जाएंगे। अब इसी 2-2 के 2 सेक्शन को मैं और कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैंने इसको और कर दिया, कॉपी किया और ये कर दिया, यानी आप कह सकते हैं 4 सेक्शन बन जाएंगे। लेट्स सी, 4 सेक्शन बन गया। अगर मुझे लगता है और बनाने हैं, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हुआ है, यानी अभी हमारे पास 4 का स्पेस खाली है, तो ये देखिए 2 और दे दिया, यानी ये हो गया 12। ये देखिए 12 फिल हो गया। एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, sir. वेल,
अब अगर मैं आपसे ये कहूँ, ओके एक काम करिए, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि आपके पास एक एग्जांपल इसका भी रहे। वेरी वेरी सिंपल, केवल हम लोगों ने डेटा Done, sir. चेंज किया है। Done. दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं ये सबको रिमूव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक सेक्शन दे रहा हूँ 6 का और एक सेक्शन दे रहा हूँ 6 का, तो क्लास क्या 12 हो जाएगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड। तो ये देखिए 12 का सेक्शन हो गया, यानी एक ही रो में 2 सेक्शन बना दिया हाफ हाफ का, और बाकी नेक्स्ट वाले रो में तो है, दैट्स इनफ। लेकिन तब क्या होगा जब आप 12 से ज्यादा कर देंगे, लाइक दिस, देखिए 12 से ज्यादा कर दिया तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रो में अगर आप 12 से ज्यादा करेंगे, जो 12 रो के बाद या 12 सेल के बाद वाला जो सेक्शन होगा वो स्प्लिट होके नई लाइन पर चला जाएगा, यानी नया रो। ध्यान दीजिएगा, रो बनाने का एक तरीका तो DIV रो था, लेकिन किसी रो के अंदर अगर आपने 12 से ज्यादा सेक्शन कर दिया तो वो भी ऑटोमेटिक नई रो में चला जाएगा। लेट्स सी, इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, वेरी गुड। और अगर मैं इसको 8 करता तो 8 के सेक्शन का हो जाता। लेट्स सी, एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, sir. वेरी No, गुड, sir. इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए एंड मेमोराइज रखिएगा कि हमने 2 चीजें बात की। एक ये कि DIV की साइज से अगर कम दिया, लाइक 12 साइज से कम दिया तो बाकी स्पेस वैकेंट रहेगा, लेकिन 12 साइज से ज्यादा दे दिया तो क्या होगा कि लाइक वो नए रो में स्प्लिट हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे मूव कर रहे हैं और मैं आपको रो बताइए। 3 लिया गया है, 4 टाइम्स। ओके, तो अगर आपने कहा कि ये 3 है, ये 3 है, समझिएगा आपने बताया ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये चारों 3 है, यही बता रहे हैं पंकज? यस सर। वेरी गुड। तो अगर ये 3 है तो ये 6 कैसे हो जाएगा? अगर ये 6 होता नो सर। तो ये ऐसा होता, ये पूरा एक सेक्शन ऐसे बना होता और फिर दूसरा सेक्शन यहाँ पूरा बना होता है या नहीं होता राम? 3 लिया सर। वो भी यस सर, 3 3 है। Yes, sir. वेरी गुड। तो ये एक्चुअली क्या है? वेरी गुड, एक्चुअली क्या है कि आप ये कह सकते हैं सेकंड रो में पहले 3 के 4 बनाएंगे, दैट्स गुड, ये 3 के 4 बनाएंगे, और फर्स्ट रो में 3 के कितने बनाएंगे? 2। वेरी गुड। अब आपको लगे 3 के क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखिए ना 3 के इक्वल ही तो है, अगर इससे ज्यादा होता तो ज्यादा का बनाते। किसी को कोई डाउट इसमें? No, No, sir. sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये तो देखिए आप बना सकते हैं, दैट्स वेरी इजी, क्योंकि यही तो बनाना हम लोगों ने सीखा है। लेकिन अगर यही सेक्शन थोड़ा सा चेंज होके ऐसा आ जाए या ऐसा आ जाए, तो देखिए क्लास, इसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत कुछ नया है। पहले आप समझिए सेकंड रो में कितने सेक्शन बनेंगे और किस किस साइज के। क्या कोई हेल्प कर सकता है इसमें? Yes, कोई sir. बताइए। Yes, इस साइज के 4 बन देंगे। अरे Three एक sides के मिनट, 4. एक बार में एक लोग, हाँ बताइए। 3 साइज के 4। वेरी गुड, 3 साइज के 4 DIVs बनेंगे सेकंड रो में। अब देखिए ये तो बन जाएगा, और थर्ड रो में भी आप देख रहे होंगे सेक्शन की साइज क्या है? 3। वेरी गुड, वेरी गुड। सेक्शन की साइज भी 3 है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने 3 DIVs बना दी तो ये यहाँ का स्पेस वैकेंट नहीं करेगा, वो लास्ट का स्पेस वैकेंट करेगा। होगा या नहीं होगा क्लास? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, वेरी गुड, ये जो स्पेस देख रहे हैं इसी को कहते हैं ऑफसेट, इसी को कहते हैं ऑफसेट। और कितना ऑफसेट करना है तो देखने में ये पता चल रहा है, इसको ऑफसेट करना है 3 ऑफसेट, तो ऑफ करके बनाया जाएगा। यानी इससे पहले वाला जो सेक्शन था वो तो इजी टू यूज था, क्यों? क्योंकि उसमें सारे सेल्स लेफ्ट अलाइन थे। राइट अलाइन करने के लिए हम लोग को यूज करना होगा ऑफसेट। तो ऑफसेट क्लासेस भी होती हैं हमारे पास ग्रिड क्लासेस की तरह। तो देखिए ग्रिड क्लासेस में भी हम लोगों ने बात किया था, एक्सेस होता है, SM होता है, MD होता है, LG होता है। इसी के जस्ट इक्विवेलेंट में ऑफसेट क्लासेस भी होती हैं। ये भी देखिए, एक्सेस ऑफसेट के बाद SM ऑफसेट, फिर MD ऑफसेट, फिर LG ऑफसेट, यानी चारों ऑफसेट्स होती हैं। तो देखिए ऑफसेट का मतलब होता है कितना छोड़ना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो अब मैं इन सबको हटा रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत देर से इसी कोड पर काम कर रहे हैं, तो एकदम फ्रेश कोड ले लिया जाए। ये देखिए, एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर एक रो ले लिया, ये रो की क्लोजिंग है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. वेरी गुड,
वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अज्यूम करिएगा कि हम लोग ये सेकंड रो बना रहे हैं। तो अगर सेकंड रो बना रहे हैं और हम 4 सेक्शन बनाना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके अंदर अगर 4 सेक्शन बनाना है तो 3-3 के सेक्शन बनाएंगे। और देखिए मैं फिर से एमडी क्लास का ही यूज कर रहा हूँ, बिकॉज आई टोल्ड यू कि अभी हम लोग एमडी एक्सेस से कोई मतलब नहीं है, अभी सिर्फ इससे मतलब है कि हम 4 सेक्शन बनाना सीख लें। तो देखिए हम ये 4 सेक्शन बना दिए, यानी एक रो में 4 सेक्शन ऐसा बना। तो आइए एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए क्लास क्या हम लोग Yes, 4 sir. सेक्शन मिल गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, तो sir. वेरी गुड। तो इस पे देखिए लिख भी देते हैं, इस पे सेक्शन 4, इस पे लिख दिया सेक्शन 3 और सेक्शन 2। अब ये तो हमारा क्रिएट हो गया, दैट्स गुड। लेकिन इसके ऊपर अगर चाहता हूँ कि 3 सेक्शन बनाऊं, और 3 सेक्शन में देखिए लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन ही समझना है, तो वो उसको अलाइन नहीं कहते हैं, उसको ऑफसेट कहते हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी मैं उसको अलाइन कह के बात जिससे आप समझ पाए। मैं यहाँ देखिए DIV लिख लिया और इस DIV को क्लोज कर दिया। इस पे मुझे 3 सेक्शन चाहिए और तीनों सेक्शन 3-3 के चाहिए। तो 3-3 के देखिए हमने 3 सेक्शन बना लिए। अब जब 3 सेक्शन आपने बना लिया तो देखिए बाय डिफॉल्ट होगा लेफ्ट अलाइन। देखिए क्लास क्या Yes, लेफ्ट में ही है sir. तीनों सेक्शन। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको लगे सर 2 सेक्शन, देखिए 2 सेक्शन भी लेफ्ट अलाइन ही होगा, ये देखिए लेफ्ट ही अलाइन है। तो व्हाट वी नीड टू डू, तो मैं चाहता हूं कि इसको राइट अलाइन करें। तो देखिए 3 सेक्शन है, राइट अलाइन करना है। तो किसको करना है, यहाँ से अगर अलाइनमेंट आपने पहला DIV ये बनाया था, तो जब ये फर्स्ट DIV बनाया है, इसी DIV में एक क्लास और लगा दीजिए, दैट इज व्हाट कॉल डैश MD डैश ऑफसेट। और ऑफसेट में ये बताया जाता है कि कितना ऑफसेट करना है, यानी कितना छोड़ना है। तो एक्चुअली मुझे छोड़ना है 3 साइज का, क्योंकि 3-3 के तो 3 बना चुके हैं, लेकिन पहले 3 स्पेस छोड़ना है। तो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन। तो ये देखिए 3 छोड़ करके बन गया। क्या आप देख पा रहे हैं क्लास? Yes, sir. वेरी गुड। तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी बेटर इसके बैकग्राउंड लगा दे रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएं। तो बैकग्राउंड डैश कलर, और इसका कलर दे दे रहा हूँ मैं हैज ग्रे कलर दे दे रहे हैं, DC कलर। और इसी कलर प्रॉपर्टी को, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को मुझे यूज करना है नेक्स्ट वाले डिव के साथ भी। तो इसको कॉपी कर लिया और इसको पेस्ट कर लिया, बट दिस शुड बी समथिंग डिफरेंट। चलिए डिफरेंट कर लिया, लेट्स सी। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास सेक्शन 2 और सेक्शन 3 बना है और सेक्शन 1 भी बना है, लेकिन 1 से पहले ये ऑफसेट है 3, क्योंकि आपने यही तो कहा है कोड में, आपने फर्स्ट वाले सेक्शन को ऑफसेट कर दिया था। पहले तो 3 साइज का बनाया है और 3 छोड़ करके बनाया है। तो इसीलिए आउटकम में देखिए कि क्या है, जो ये सेक्शन बन रहा है ये 3 छोड़ करके बन रहा है, और कितने साइज का बन रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये 3 साइज का ही बन रहा है। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. पहले इसका स्क्रीनशॉट करिए, तो मैं इसमें अभी और एक इनपुट करके बताता हूँ आपको। सर अगर फर्स्ट वाले डिव को अगर मतलब ब्लैंक छोड़ दे तो नहीं बनेगा? मतलब सर फर्स्ट वाले डिव में हम कोई मतलब एक बात ब्लैंक बताइए अमित, सेक्शन नहीं बना। एक बात बताइए, आज से पहले आपने कभी DIV बनाया अमित? यस सर। ये बताइए DIV का कोई एग्जिस्टेंस होता है, लाइक उसमें अगर आप खाली छोड़ते हैं तो क्या DIV का कुछ बॉर्डर और कुछ दिखता है? नहीं सर, CSS का प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो हाइड ब्रेथ लगाएंगे ना, तो हाइड ब्रेथ लगाएंगे तो DIV से जो पोजीशन सेट करवाए थे, याद है आपको? एक Yes, sir. मेनू बनवाए थे, लेफ्ट कॉर्नर बनवाया था, राइट कॉर्नर बनवाया था। तो वो टिपिकल था काम करना, या ये टिपिकल है? वो टिपिकल था। उसमें हर चीज लिखना पड़ रहा था ना, तो सोचिए कितना लिखे, इसीलिए तो आपको ये फैसिलिटी दी गई है। और अगर आपको लगता है कि सर हम कर सकते हैं तो करिए, उसी को करिए। बट प्रॉब्लम इज व्हाट कि लाइक उसको करेंगे तो सोचिए कितने इश्यूज आएंगे कि लाइक आपको सारी फॉर्मेटिंग बनानी है, तो फिर बूटस्ट्रैप तब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि लाइक हम लोगों का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको भी तो अडॉप्ट करना है, और वो जानते हुए, बिकॉज वो CSS नहीं करते तो आप कैसे जानते कि क्लास कैसे यूज किया जाता है? गेटिंग अमित? दैट्स गुड। Yes, sir. तो अब देखिए ये हम लोगों ने कर लिया यार। अब मैं जा रहा हूँ आगे। कोई डाउट तो नहीं है अभी अमित? अमित कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेलकम। सो देखिए ये हम लोगों ने सेक्शन क्रिएट किया था। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ इस सेक्शन को भी हटा दूं। सारे सेक्शन हटा दिया, देखिए ये सेक्शन रखा सिर्फ। तो अब ये देखिए ये सेक्शन रखने का मतलब क्या है कि 3 साइज का एक सेक्शन बनाना है
और 3 छोड़ के बनाना है। तो ये देखिए रिफ्रेश कर दिया और आइए इस पे बैकग्राउंड इस पे भी अब लगा लेते हैं, जिससे कि आप अच्छे तरीके से इसको समझ करके कर सकें। तो यहाँ हमने कह दिया बैकग्राउंड डैश कलर और इसको दे दिया ग्रे कलर, ये देखिए, और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं चलकर, ये देखिए बन गया। तो आप देखिए हम लोगों ने क्या किया, ये जो ऑफसेट नहीं लगाया होता, देखिए हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ऑफसेट नहीं लगाए होते तो बाय डिफॉल्ट डीआईवी फर्स्ट सेक्शन पे बनता है, तो देखिए फर्स्ट सेक्शन पे बन गया। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं मैं तो ऑफसेट चाहता हूँ, यानी छोड़ करके बने, 3 छोड़ के बने, तो देखिए 3 छोड़ के बन गया। आपको लगता है सर आई वांट टू कि लाइक ये सबसे लास्ट में बने, तो सबसे लास्ट में बने तो देखिए मैंने 9 छोड़ दिया, तो 9 छोड़ करके बनेगा और कितने पे बनेगा, 3 साइज का। तो ये देखिए 9 छोड़ करके 3 पे बन गया। कोई डाउट किसी नो को? सर। नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए हमने कहा 2 छोड़ करके बन जाए, ये देखिए 2 छोड़ के बन गया और हमें लगता है 2 छोड़ के बने बट इसकी साइज 6 हो जाए, तो ये देखिए 6 हो गया। आपको लगा कि सर 2 छोड़ के बने, 3 छोड़ के बने, 3 छोड़ के बने लेफ्ट से और 6 साइज हो जाए, तो देखिए जब 3 छोड़कर बनेगा लेफ्ट से और 6 साइज हो जाएगा, इसका मतलब राइट में भी कितना बच जाएगा क्लास? 3। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब ये देखिए सेंटर में आ जाएगा और देखिए सेंटर में आ रहा है, तो दैट मींस इट्स वेरी इजी टू यूज। देखिए कितना अच्छे से लेआउट, कितना आराम से आप लेआउट मैनेज कर सकते हैं। एनी डाउट एनीवन? No, sir. नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट करिए। हाँ बताइए, बताइए। 3 छोड़ के अगर हम कॉल उसको स्पेस 12 कर देंगे तो सर क्या होना चाहिए? नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। नेक्स्ट रो में चला जाएगा। यस सर, बताया तो है रोहित, बताया तो है। वो तो एक ही चीज, मतलब कि एक ही रो का है बने से, मतलब एक ही रो का नेक्स्ट रो में चला जाएगा। नहीं, एक ही रो के नेक्स्ट रो वाला कोई मैटर नहीं होता है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा एक ही रो का नेक्स्ट रो में चला जाएगा, उसको नेक्स्ट रो कहते हैं। भाई कोड में आप क्या लिख रहे हैं और सामने क्या आ रहा है, उस दोनों में मतलब है ना। सामने आपके नेक्स्ट रो में आ रहा है और नेक्स्ट रो ही उसको कहा जाता है। तो फिर सेक्शन तो टूट जाएगा ना सर? क्या हो गया रोहित? सेक्शन तो फिर डिवाइड हो जाएगा ना, मतलब और यहाँ पे जो क्लास कॉल एमडी डैश यहाँ पे 12 कर देंगे और ऑफसेट यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो फिर तो नया रो में चल जाएगा ना। 3 तो नया रो में जाके बनेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, 3 नहीं, तब तो 12 का आप बना रहे हैं ना, आप 3 क्यों कह रहे हैं? फिर आप तो 12 का बना रहे हैं ना साइज। अच्छा, वो नेक्स्ट लाइन में पूरा चल जाएगा 12? बिल्कुल चला जाएगा पूरा, आधा थोड़ा ना जाएगा, पूरा 12 है तो पूरा 12 नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा ना। थैंक यू सर। वेलकम। हो गया क्लास? स्क्रीनशॉट आप लोग का? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है। यहाँ मैं देखिए एक हेडिंग लगा रहा हूँ H3, क्या आप जानते हैं H3? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हेडिंग 3 नहीं, हेडिंग साइज 3, लाइक 3 साइज का थर्ड यानी मीडियम हेडिंग है। यस, वेरी गुड, मीडियम हेडिंग। और देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ होम, यहाँ लिख रहा हूँ अबाउट अस। क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ सुना है? यस सर। क्या है ये? गैलरी वाले बनवाए थे सर गैलरी वाले गैलरी वाला जो बनाया था प्रोग्राम, गैलरी वाला प्रोग्राम बनवाया था या होम वाला बनवाया था या अबाउट अस वाला? नेविगेशन बार। सब सर। नेविगेशन वाला। ये हमने बनवाया था आप लोग को एक प्रोजेक्ट, जिसमें ये बताया था कि पेजेस को लिंक करते हैं। तो लेट्स सी, देखिए ऐसा कर दिया और देखिए कितना इजीली बन गया, बना क्लास बहुत इजीली। यस सर। टेबल टैग की प्रॉब्लम तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा। टेबल टैग का, टेबल टैग के थ्रू जब आपने ये बनाया होगा तो आपने 4 टीडीज ली होंगी एक रो में। क्या ऐसा था क्लास? यस सर। यस सर। अगर ऐसा था तो फर्स्ट रो में कितना कॉल स्पेंड किया था? फर्स्ट रो में कितना कॉल स्पेंड किया था आप लोगों ने? 4 सर, 4। वेरी गुड। और अगर फर्स्ट रो में 4 स्पेंड किया था तो जरा सोचिए कि अगर एक बार भी ऐसा हो जाए कि लाइक मैं आपसे कह दूं एक मीनू और ऐड करिए, तो अगर आपको मैंने कह दिया ब्लॉग नाम का एक मीनू और ऐड करिए, तो जैसे ही आप ब्लॉग नाम का एक मीनू ऐड करेंगे उस टेबल वाले प्रोजेक्ट में, तो यहाँ भी कॉल स्पैन 5 करेंगे और ये जो सेकंड सेल बनाए होंगे, लाइक सेकंड रो के बाद जो थर्ड रो बनाए होंगे उसमें भी कॉल स्पैन 5 करना होगा और लास्ट वाले रो में भी 5 करना होगा या नहीं होगा क्लास?
Yes, sir. Yes, sir. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टेबल के थ्रू तो हम लोगों ने 4 रो का ही पेज बनाया था, तो 4 रो था तो एक चेंजेस पे 3 रो में चेंजेस करने पड़ गए, फर्स्ट रो में, थर्ड रो में और फोर्थ रो में। तो जरा सोचिए क्या टेबल टैग इजी टू वर्क है? No, sir. No, No, sir. sir. वेरी गुड। लेकिन क्या इसमें भी कोई प्रॉब्लम आएगी अगर एक डीआईवी और ऐड करना होगा तो? No, sir. Good. क्योंकि तब हमको सिर्फ इसी रो को देखने की जरूरत है, बाकी को तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग बूटस्ट्रैप। देखिए काम भी आपका आसान और इजी हो गया है। कोई डाउट किसी को भी? No, sir. No, No, sir. sir. नो सर। अब वेरी गुड। अब मैं आपसे लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जो समझने वाला था, समझने वाली इतनी चीजें थी जो आपने समझा अभी। इसके बाद जो मैं समझाने वाला हूँ वो लास्ट पॉइंट है एक्चुअली समझने के लिए। तो एक काम करते हैं, उसको कल समझते हैं, क्योंकि अभी आप लोग इस पे काम कर लीजिए, लाइक ग्रिड पे काम कर लीजिए, ग्रिड ऑफसेट पे काम कर लीजिए, तब मैं आपको उसको बताऊंगा। बट अब इसके बाद देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कुछ टेक्स्ट रिलेटेड क्लासेस। देखिए टेक्स्ट रिलेटेड क्लासेस हैं क्या? ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बताने के लिए यूज होते हैं। जैसे ये समझ लीजिएगा कि ये सब जगह मिलेगा, लाइक ये प्राइमरी जो लिख कर आ रहा है, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग और डेंजर, ये सब जगह मिलेगा। इसको कहते हैं कॉन्टेक्चुअल क्लास। तो किसी भी सेक्शन के साथ आपको ये कॉन्टेक्चुअल क्लास अभी मिलेगा, मतलब बहुत सी जगह पे ये कॉन्टेक्चुअल क्लास मिलेगी। जैसे अभी ये टेक्स्ट रिलेटेड है तो टेक्स्ट डैश प्राइमरी है, टेक्स्ट डैश सक्सेस है, टेक्स्ट डैश इन्फो है, टेक्स्ट डैश वार्निंग है, टेक्स्ट डैश डेंजर है। तो इसी तरह भी आपको बैकग्राउंड के साथ मिलेगा, बटन के साथ मिलेगा, बहुत सी जगहों पे ये मिलेगा। तो ये है क्या? ये एक्चुअली फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही देखिए और भी टेक्स्ट रिलेटेड क्लासेस हैं, जैसे टेक्स्ट डैश लेफ्ट क्या करेगा? टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन कर देगा। टेक्स्ट डैश सेंटर, सेंटर अलाइन कर देगा। टेक्स्ट डैश राइट, राइट अलाइन करेगा। जस्टिफाई, जस्टिफाई कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा क्लास, ये जितनी क्लासेस हैं ये क्लास फॉर्मेट में हैं, लाइक सारी क्लासेस हैं टेक्स्ट रिलेटेड क्लासेस। तो मुझे बताइए क्लासेस को यूज करने के लिए क्या करना होता है? Class Class equals to class name देना। वेरी गुड, वेरी गुड, नाम वेरी देंगे। गुड, वेरी गुड। क्लास इक्वल टू क्लास नेम। अब देखिए जो सेकंड रो बना है, होम, अबाउट अस, गैलरी और कॉन्टेक्ट अस, इसके सारे टेक्स्ट देखिए लेफ्ट अलाइन है यहाँ पे, ये देखिए लेफ्ट अलाइन है। और अगर आपको डाउट हो तो ये देखिए मैं इस कंटेनर को चेंज करके कंटेनर फ्लूइड कर दे रहा हूँ। और आप जानते हैं फ्लूइड तो फुल विड्थ होता है, तो ये देखिए फुल विड्थ में आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि लेफ्ट अलाइन है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पर इस क्लास के अंदर लगा सकता हूँ फॉर्मेटिंग होम के लिए, ऐसे अबाउट अस पे भी लगाना पड़ेगा, गैलरी पे भी, कॉन्टेक्ट अस पे भी। तो मैं कह रहा हूँ पूरे पूरे रो पे लगाइए। और आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखिएगा कि क्लास तो एक ही पर्टिकुलर टैग पर एक से ज्यादा क्लास लिखा जा सकता है बाय सेपरेटिंग स्पेस। क्या आपको याद है क्लास? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो CSS में ये बताने का रीजन भी यही था, क्योंकि यहाँ देखिए हम लोग मल्टीपल क्लास यूज कर रहे हैं। तो जो DIV बनी है उसमें रो तो बना रहे हैं, उसके साथ साथ उसमें एक और क्लास लगा दिया टेक्स्ट डैश सेंटर। जैसे ही करेंगे ये देखिए सारे एलिमेंट आ गए सेंटर में। एनी डाउट No. एनीवन? No, sir. वेरी गुड, No, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। तो इसका भी पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब मैं आगे जाता हूँ। डन सर। वेरी गुड। क्या क्लास सभी का हो गया? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ कि यहाँ से ये फर्स्ट रो को रिमूव कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। और अब मैं सिर्फ आपको फॉर्मेटिंग बताने के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट लगाते जा रहा हूँ। जैसे पहला फॉर्मेट है टेक्स्ट डैश प्राइमरी। ये प्राइमरी टेक्स्ट क्रिएट करता है। प्राइमरी का मतलब नॉर्मल टेक्स्ट जो लाइट ब्लू कलर से दिखता है। देखिए क्लास, क्या आपको दिख रहा है लाइट ब्लू कलर Yes, से? sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैसे टेक्स्ट डैश प्राइमरी लगाया, सारे DIV में लगाते चले जाइए। टेक्स्ट डैश इन्फो होता है, टेक्स्ट डैश वार्निंग होता है, ये सब फॉर्मेटिंग है केवल। टेक्स्ट डैश वार्निंग, टेक्स्ट डैश सक्सेस। देखिए सक्सेस को तब यूज करते हैं जब हमें सक्सेस का कोई मैसेज दिखाना हो। जैसे आपने यूजर को दिखाना चाहते हैं कि सक्सेसफुली इंसर्टेड, तो उसकी जगह पे यही वाला डिव बनाइए, ऐसा डिव जिसमें सक्सेस लिख के आ जाए। और देखिए इन सब का मैं साइज कम कर दे रहा हूँ, 2 कर दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे DIV और बनानी है। तो मैं देखिए एक डिव और बना रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ डेंजर। देखिए ये सब क्लासेस हैं। तो पहली क्लास है प्राइमरी। तो प्राइमरी कैसा दिखता है, इसके लिए मैं यहाँ होम के बगल में ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ प्राइमरी, जिससे आपको समझ में आ जाए
कि इस वाले डिप पे हम लोगों ने क्या अप्लाई किया है, प्राइमरी। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि प्राइमरी बना है। ऐसे यहाँ वाले पे इन्फो बनाया है तो यहाँ इन्फो लिख दे रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये इन्फो का फॉर्मेट है। ऐसे ये वार्निंग का फॉर्मेट है तो यहाँ वार्निंग लिख दे रहे हैं। ये आपका सक्सेस का फॉर्मेट है तो यहाँ सक्सेस लिख दे रहे हैं। क्लास क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और इसी तरह देखिए यहाँ डेंजर लिख दिया। ये सारी क्लासेस कहलाती हैं कॉन्टेक्चुअल क्लास। ये देखिए सबका फॉर्मेट। और आप लोगों ने आजकल की वेबसाइट्स पे ये बहुत अच्छे से देखा भी होगा कि लाइक आपने ऐसा डेंजर टेक्स्ट देखना, कॉन्टेक्ट अस में लगी है जो सक्सेस है, वार्निंग दिखाने के लिए वार्निंग वाला यूज करते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए यूज करते हैं, फिर प्राइमरी के लिए यूज करते हैं। तो दीज ऑल आर द फॉर्मेट्स वी हैव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। और इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट करिए क्योंकि ये सब आपको ही अप्लाई करना है। अब इसके बाद सेंटर, जस्टिफाई, राइट, उसके अलावा लेफ्ट, फिर नो रैप, लोअर केस, ये आपको अप्लाई करना है। और नहीं होगा तो कल मैं इनिशियली आप मुझसे पूछेंगे। टेकन क्लास? Yes, sir. वेरी गुड। वन मोर स्क्रीनशॉट यू नीड टू डू। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये दोनों ही फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है। सब लोग क्लासेस हैं तो क्लास की तरह अप्लाई करेंगे, क्लास स्पेस क्लास नेम, और करके जरूर आइएगा क्योंकि मैं पूछ भी सकता हूँ कि लाइक आपने ये किया तो क्या हुआ। बी केयरफुल। सो हैव यू टेकन क्लास? यस सर। Yes, sir. Sir. वेरी गुड। अब देखिए, अब बैकग्राउंड रिलेटेड क्लासेस, ये हैं बैकग्राउंड रिलेटेड क्लासेस। और फिर देखिए वैसा ही लिखा है बीजी डैश प्राइमरी, बीजी डैश सक्सेस, बीजी डैश इन्फो, बीजी डैश वार्निंग, बीजी डैश डेंजर। कैसी क्लासेस होंगी ये? कॉन्टेक्चुअल क्लास। आई टोल्ड यू कि ऐसी क्लासेस को क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्चुअल क्लास। ओके क्लास? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो है तो Yes. बैकग्राउंड रिलेटेड, ये आप सही कह रहे हैं कि है तो बैकग्राउंड रिलेटेड, बट सभी कंटेक्चुअल क्लास हैं। तो अब देखिए एक काम करते हैं, एक रो और बना लेते हैं इसी में। ये देखिए एक रो और बना लिया और जहां हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा था, अब टेक्स्ट की जगह पे बीजी को यूज करेंगे। तो बीजी से बेनिफिट ये होता है बैकग्राउंड लगता है। और ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि बीजी को और बीजी के साथ साथ इसको लाइक टेक्स्ट वाले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप दोनों अप्लाई करिएगा। क्लासेस हैं, आप जानते हैं एक से ज्यादा क्लास लिखा है तो आप लिख के देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर सब जगह बीजी लगा दे रहा हूँ यानी बैकग्राउंड कलर। तो ये देखिए ऐसा लगा दिया। सेव करिए और पेज को आइए रिफ्रेश करिए। देखिए सारे बैकग्राउंड कलर भी आपको मिल जाएंगे। और ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा। क्या ऐसा देखा है क्लास? Yes, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दैट ऑल आर फॉर योर फर्दर रेफरेंस। और ये सब पे आज आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डन क्लास? Yes, Done, sir. sir. वेरी गुड। तो आगे मूव कर रहे हैं, कुछ चीजें और देखेंगे। तो ये तो था बैकग्राउंड रिलेटेड क्लासेस और दोनों में कंटेक्चुअल क्लास यूज किए हैं। अब टेबल मैं कल आपको कराऊंगा, डोंट वरी। अब आ जाते हैं बटन पे। अब देखिए बटन पे लिखा है BTN, फिर BTN डैश डिफॉल्ट, BTN डैश प्राइमरी, BTN डैश सक्सेस और BTN डैश इन्फो, BTN डैश वार्निंग। कैसी क्लासेस हैं क्लास? Contextual. Contextual. वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका भी स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। डन क्लास? Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो आइए इसको भी अप्लाई करते हैं। अब देखिए कोड बहुत ज्यादा है तो मैं ये सब कोड को हटा देता हूँ। इतने कोड्स हम लोगों को नहीं चाहिए तो हटा दिया। देखिए अब क्या है, हमारे पास सिर्फ कंटेनर है और रो है। इसी कंटेनर रो के अंदर हम जो है बटन बना रहे हैं। तो देखिए एक बटन बनाने के लिए कोई मुझे बता सकता है क्या तरीका होता है? Type equals to button. वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए इनपुट टाइप बटन तो हम लोग तब लिखते हैं जब हमें क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग करना हो, और सर्वर साइड प्रोसेसिंग करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं इनपुट टाइप सबमिट। इज इट क्लास? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। बटन को बनाने के लिए एक बटन टैग भी होता है, उसका भी यूज कर सकते हैं आप। इसमें भी लिखते हैं टाइप प्रॉपर्टी। सिर्फ आप बटन लिख देंगे ऐसा तो बटन ओके, तो देखिए बटन आ जाएगा। लेट मी शो यू। ये देखिए दोनों बटन आ गई। एक इनपुट टैग से बना है और एक बटन टैग से बना है और दोनों का सेम फॉर्मेट होता है।
लेकिन जब आप बटन टाइप इक्वल टू बटन लिखेंगे तो क्लाइंट साइड, और बटन स्पेस टाइप इक्वल्स टू सबमिट लिखेंगे तो सर्वर साइड। तो मैं ये दोनों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये दोनों पता होना चाहिए। इन दोनों में आप क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस पे मैंने क्लास अप्लाई कर दिया BTN, और BTN का मतलब बटन की फॉर्मेटिंग चाहते हैं। तो लेट्स सी, देखिए जैसे ही करेंगे देखिए बटन की फॉर्मेटिंग आ गई। आर यू गेटिंग द चेंजेस क्लास? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब ऐसा नहीं है कि ये इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, देखिए इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यू नो कि ओपनिंग टैग में करेंगे। ये देखिए ये भी ऐसा ही हो गया। एनी डाउट? No, sir. No, sir. नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए इसी में हम अगर लिख दें BTN डैश प्राइमरी, तो ये देखिए प्राइमरी बटन हो जाएगा। लेट मी शो यू, ये देखिए। और ऐसे ही नेक्स्ट वाले में अगर हम लोग BTN डैश प्राइमरी लिख देते तो ये भी प्राइमरी बटन हो जाता। तो यही क्लास है, क्लास स्पेस देके क्लास का नाम, ये देखिए दोनों प्राइमरी बटन हो गया। एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, sir. Okay, okay. So please take the screenshot. Done class? Done, sir. Yes, sir. Very good, very good. तो अब आप लोग इसको भी अप्लाई करिएगा, सारी चीजें, सिर्फ ये नहीं कि BTN डिफॉल्ट प्राइमरी सक्सेस इन्फो वार्निंग, सब अप्लाई करना है। इसमें देखिए डेंजर है, लिंक है, MD है, SMI एक्सेस है, और BTN ब्लॉक है, सबको करिएगा। कल मैं लेकिन इसको समझाऊंगा जरूर, तो इसको और टेबल को अभी समझाएंगे, और आप लोगों को ओवरराइडिंग बिहेवियर समझाएंगे कल। लेकिन इतना जो भी ग्रिड के बारे में बात किया है इसको करके जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज दीज ऑल आर वेरी यूजफुल। क्योंकि अब आपको जल्द ही वेबसाइट भी असाइन कर दी जाएगी, लाइक क्या वेबसाइट बनाना है। तो आई गेस कि मैं कल ही आपको बता दूंगा कि अब आप लोगों को प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर होना है। और कल का एक टास्क मैं और दे रहा हूँ, ये तो आप करेंगे ही करेंगे क्लासेस, इसके साथ साथ गूगल पर जाएंगे और गूगल पे आप सर्च करेंगे एग्जाम्प। ये एग्जाम्प एक सॉफ्टवेयर का नाम है, इसको आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इंस्टॉल कर लीजिए तो यहाँ एग्जाम्प लिखिएगा, और एग्जाम लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा एग्जाम कंट्रोल। ये एग्जाम कंट्रोल पैनल होता है एक्चुअली। तो इस कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। तो इस पे दो काम आपको करना है, ये जो अपाचे लिखा है और माइस्क्यूएल लिखा है, इसके सामने ये स्टार्ट लिखा है, इसको क्लिक करिएगा, और क्लिक करके थोड़ी देर वेट करिएगा, देखिएगा यहाँ स्टॉप लिख जाए और यहाँ रेड कलर का कोई एरर ना आए। फिर माइस्क्यूएल पे जाइएगा, इस पे भी स्टार्ट पे क्लिक करिएगा और देख लीजिएगा नीचे कोई एरर ना आए। तो कल आप लोगों को इतना काम करके आना है, ध्यान रखिएगा। और कोई चीज अभी टच नहीं करना है, सिर्फ मैंने बात की है अपाचे की और माइस्क्यूएल की। तो जिसके पास भी पहले से वैम्प इंस्टॉल्ड हो, हटा दीजिएगा वैम्प। वैम्प नहीं चाहिए, चाहिए एग्जाम्प। क्यों चाहिए, क्या करना है, नहीं करना है, सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको करना क्या है, एग्जाम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिएगा, उससे पहले वैम्प को अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। तो वैम्प सर्वर को अनइंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आपके पास हो तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम पे डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करके इन दोनों को चेक कर लेना है कि ये स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये इतने टास्क कल तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे कि हम लोग आगे फर्दर मूव कर सकें। और जिसका भी ये स्टार्ट नहीं हुआ होगा वो मुझसे कल एक बार मुझे स्टार्ट में बता देगा, मैं बताऊंगा करना क्या है। सो क्लास आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम लोग अभी कल मिलते हैं, तो कल हम लोग कुछ चीजें और करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। यू ऑल कैन पुट योर फीडबैक and can leave session. Thank you very much class. Thanks a lot. And please put each and everyone put your feedback. Don't leave with